Screen is visible. Yes. Guys, please make me confirm my screen is visible to you. Okay. Thanks. So in our last class till switch DAX function, Utkarsh and Abhinay. Any doubt till here? If you have any small doubt till your DAX function, so please let me know. Switch function is clear to you. अब तक हमने मैंने डैक्स स्टार्ट करने पर बताया था कि वी हैव मैनी कैटेगरीज इन डैक्स फंक्शन. फर्स्ट वी हैव बेसिक मैथमेटिक फंक्शन दैट वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर last class. After our basic mathematic function we have logical function that also we covered in our last class. After our logical function we practically did our count functions, varieties of count function, and our last and one more powerful DAX function is, what is it is switch function. Switch function, everything is clear to everyone till now? पावर बीआई में हमने पावर क्वेरी, in and out of your power query we covered, data modeling concept covered till now, DAX functions few categories are clear to everyone, right? Yes, ma'am. Okay. So the next category which we are going to discuss with you, that is text function. So Utkarsh, I think you are from business analytics batch, right? Yes, ma'am. So एडवांस एक्सेल की क्लासेस सारी अटेंड की हैं, तो उसमें हमने टेक्स्ट फंक्शन का हमारा एक क्लास था. सो कैन यू प्लीज टेल मी सम टेक्स्ट फंक्शन दैट वी कवर्ड इन अवर एडवांस एक्सेल क्लास? व्हाट इज टेक्स्ट फंक्शन? See, text function is very Ma'am, easy. actually, some of the points of the tax functions are not clear to me, so I am just doing that कि मैं डैशबोर्ड पे दोबारा विजिट करके वो वीडियो एक बार चेक करूंगा, क्योंकि मेरे 2-3 सेशन छूट गए थे क्योंकि हमारा कॉलेज में फेस्ट चल रहा था ना, दैट्स व्हाई मैम. ओके. सो मे बी आपने अटेंड नहीं किया, तब आपको क्लियर नहीं है. अदरवाइज टेक्स्ट फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है उत्कर्ष, जो अगर आपने क्लास अटेंड की और आपको समझ नहीं आया. टेक्स्ट फंक्शन इज वेरी वेरी इजी एंड होल टेक्स्ट फंक्शन सिमिलर टू योर एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन. जो अब हम पावर बीआई में भी टेक्स्ट फंक्शन कवर करेंगे वो आपका कंप्लीट सिमिलर होगा आपके एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन में. सो लेंथ, व्हाट इज द यूज ऑफ लेंथ टेक्स्ट फंक्शन? कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी कॉलम के इतना आपको पता है कि जब हम पावर बीआई की बात करते हैं या पावर क्वेरी की बात करते हैं एज कंपेयर टू योर बेसिक एक्सेल, तो बेसिक एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज में सिंपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? या अल्टरनेट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की. But whenever we talk about Power Query and your Power BI, so at that time, what we have need to select, we are work on complete column, not any single cell. Yes, सबको पता है, everyone is aware about it, कि जब भी हम पावर क्वेरी और पावर बीआई की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम किसी सिंगल सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट होल. So whenever you want to count your column cells length, I show you table data. Select any table data. Here, if you want to count how many characters are in your order ID, so which function we will use? We will use length function as like your
एक्सेल फंक्शन एंड फॉर लेंथ फंक्शन के जैसे ही हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट राइट मिड। अब लेफ्ट राइट मिड आपका क्या करते हैं, इफ यू वांट ओनली लेफ्ट डाटा, you want left characters, how many characters you want, 2 characters. So at that time what we have need to use, we use left function. Left function is our one text function. And if we, our requirement is for right data, if I am looking for this number, I want to extract these numbers, so which function I will use, I will use function. राइट फंक्शन में आपके पास 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। जैसे ही आप राइट लिखेंगे, I will show you also what we have need to create. What we have need to create, calculated column or calculated measure. Yes, tell me fast. I want to extract this number from every row. So whenever our requirement is from every row, so at that time we always go with column instead of measure. Remember to everyone? Now, right. Which function we are using? We are using right function. So right. अब यहाँ पर आपसे टोटल कितने आर्गुमेंट्स पूछे हैं? 2 आर्गुमेंट्स। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट I want to extract what I want to extract, I want to product ID numbers. So product ID, where is my product ID? That is my product ID, comma, after that what is our second argument? Number of character। कि आपके डेक्स फंक्शन को जब हमने एक्सेल, जो एक्सेल बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि राइट हो, लेफ्ट हो या मिड हो। हमारे पास टोटल कितने आर्गुमेंट्स होते हैं विद इन अवर वन फंक्शन? वी हैव 2 आर्गुमेंट्स इन दिस लेफ्ट राइट मिड। फर्स्ट टेक्स्ट, कि फ्रॉम विच टेक्स्ट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट राइट डाटा। वो उसको जैसे ही आपने राइट फंक्शन लिखा, उसको इतना तो पता चल गया आपके डेक्स को कि he or she want to extract right data, but from which data? तो डाटा के लिए हमने उसको रेफरेंस दिया प्रोडक्ट आईडी, कि वी वांट फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी, वी वांट राइट डाटा फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी। बट अब वो सेकंड आर्गुमेंट आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट, कि उसको आप इतना, जैसे ही मैंने उसको कॉलम का रेफरेंस प्रोवाइड कराया, नाउ ही फंक्शन इज एबल टू नो कि उसको प्रोडक्ट आईडी से राइट डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। बट दिस फंक्शन इज नॉट अवेयर अबाउट हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम राइट। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट। सो प्रोडक्ट आईडी में अगर आप कॉलम चेक करें तो आपका जो डिजिट है वो कितने नंबर्स में है? 1 2 3 4 8। सो पुट 8 ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। सो आपका अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको दिख रहा है। सेम आप लेफ्ट डाटा को, इफ यू वांट, that is your, what is FUR? That is your product category. In this data we have office supplies data, we have home supplies data, and we have furniture data. So FUR यहाँ पे क्या represent कर रहा है कि that product ID is for your furniture category, and ये OFF आपका represent कर रहा है कि that product ID is only for your office supply data. सेम ऐसे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको होम सप्लाईज की भी कैटेगरीज मिलेंगी। तो इन दिस डाटा टोटल वी हैव 3 कैटेगरीज। तो अभी हमने क्या कर लिया? दैट इज अवर प्रोडक्ट नंबर। हमने प्रोडक्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इफ यू वांट टू रीनेम योर कॉलम, सो यू आर एबल टू रीनेम योर कॉलम। Right click on your column header and this type of one pop-up is come on your screen. Now select this rename and put your column name according to your requirement. Yes, अब लेफ्ट राइट मिड तीनों फंक्शंस आप, अब राइट मैंने किया क्लास में, अब लेफ्ट और मिड आपको खुद से करने हैं। ओके,
सेम सर्च फंक्शंस, जितने भी टेक्स्ट फंक्शन है ये आप अपने खुद से ट्राई करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको राइट का दिखा दिया कि हाउ योर टेक्स्ट फंक्शन विल वर्क इन योर पावर बीआई। एंड वन मोर फंक्शन in text function we have, that is concatenate. How many students aware about this concatenate function? Yes, Satendra, you are from advanced business analytics batch, right? Satendra, तो concatenate function आपका किस यूज में होता है? Whenever we want to combine two text values, if I want to combine my first name and my last name, if they present in separate column, my first name is present in A column and my last name is present in B column, and I want to combine both names, first name and last name. So at that मैम time, what at that time, mute yourself, Stender. So at that time, what we have need to use, we will use concatenate function. So if I show you one practical example for your concatenate function, so we have this customer ID and we have this ship mode. And now I want to check कि इस कस्टमर आईडी का जो शिप मोड था वो कौन सा था, स्टैंडर्ड या फिर सेकंड या फिर फर्स्ट डे उसका डिलीवर था। आई वांट टू चेक फॉर एवरी कस्टमर। मैं क्या करती हूँ उसको, अब मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ा है, टू कॉलम को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, शिप मोड कॉलम एज साइड बाय साइड कस्टमर आईडी। बट व्हाट इफ आई कंबाइन बोथ द कॉलम, तो मैं सिंगल कॉलम में चेक कर सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी का शिपमेंट कैसे हुआ प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर आईडी के प्रोडक्ट का शिपमेंट कैसे हुआ। यस, तो फॉर दैट वी विल यस यूज मैम concatenate function. So one more, so now you tell me what we have need to create now, column or measure. Understanding of column और measure is very important guys. जब तक आपको इनका ही क्लियर नहीं होगा कि आपको कब कॉलम क्रिएट करना है, कब करना है, so you are not able to do analysis in your data. So yes, let me know what is our requirement now. we have to create new column मैम। Yes, good, column, because we are looking for every row. yes मैम, and we can use concatenate function to merge two columns मैम। Yes, right. तो यहाँ पे मैं नाम देती हूँ combination of two column, combination of two column। अब फंक्शन का नेम हमारा क्या है, concatenate, concatenate। अब आपको पता है कि टेक्स्ट वन जब एक्सेल में हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल का रेफरेंस देते हैं। बट पावर बीआई में हमारे पास सेल का रेफरेंस नहीं है, वी हैव कॉलम रेफरेंस। सो व्हाट वी वांट टू कंबाइन, कस्टमर आईडी एंड शिप मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिप मोड, that is our ship mode column, and what is our text 2, that is our customer id. So that is the column of our customer id. Close your bracket, hit on enter. आपके पास एक न्यू कॉलम ऑफ टू कॉलम के नाम से अब आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका इस स्पेसिफिक आईडी का जो शिपमेंट हुआ आपके प्रोडक्ट का वो किस मोड में हुआ, स्टैंडर्ड मोड में। देन वी हैव स्टैंडर्ड। अगर हम इसको स्क्रॉल करें डाउनवर्ड, तो मोस्टली शिपमेंट हमारी किस मोड में हुई है, स्टैंडर्ड मोड में। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कर सकते हैं, आपका शिप मोड क्या है, स्टैंडर्ड है मोस्टली कस्टमर आईडी के लिए, राइट। So this is your text function. That's how you are able to
data more clear to you all. So बाकी के जो आपके मैंने अभी बताया कि if you want to count length of your data, if you want to extract left data or else mid data, so that's all function, try it on your own. That is very simple. Just try it. If you face any issue, so let me know in our next class. Okay? Yes, ma'am. Try it on your own. Okay. So they all functions are considered as your text function. तो जो इनका मेजर डिफरेंस था आपकी एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन में और पावर बीआई टेक्स्ट फंक्शन में, अभी वो क्लियर है आपको कि जब एक्सेल में हम टेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वी आर यूजिंग सेल instead of column reference, but whenever we will use text function in power bi, so at that time we put column reference. Okay. Now we will move towards our next category, one more important category, that is date and time. Date and time functions are very important because every time what is your requirement, you are looking for date and time in your data, in your report. आपको हमेशा क्या करना होगा, डेट और टाइम के अपने डाटा को एनालाइज करना होगा. So when we talk about date, so in date we have two category. One is date and time. And what is date and time category? In that we do basic calculation. What do you understand by basic calculation? Basic calculation regarding the date functions. Like we want to extract month. हमने हमारी एक क्लास में मंथ को एक्सट्रैक्ट किया था, राइट? फिर हमने मंथ नंबर को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक डेक्स फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट किया था उसके मंथ नेम में. कैन एनीवन टेल मी व्हिच फंक्शन वी आर यूज्ड एट दैट टाइम? मंथ नंबर किया था डेट कॉलम से. किसी को याद नहीं है? नो वन? Okay, we will revise it once again. So what is basic calculation in date and time? So like we want to extract month, year, date, we want to create a month name column जो already हमने क्लास में किया भी था. So ये आपकी सारी calculations किसके अंदर आती हैं? Date and time category की basic calculation में. That is your basic calculation. These all functions covered into date and time category. What is our second category? After your basic calculation of date and time, we have really important category, that is time intelligence function. टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन क्यों बोला मैंने कि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मे बी इन आवर सेकंड क्लास, कि अगर आपके इस क्वार्टर में अगर आपके पास डाटा है 2019 ईयर का, अगर आपने क्वार्टर 2 का आपने डाटा एनालाइज किया है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, कि मेरे पास इस ईयर में 2019 के क्वार्टर 2 का डाटा इतना है, सम ऑफ सेल्स रिवेन्यू है एज कंपेयर टू 2018 क्वार्टर 2. तो जब ये कंपैरिजन हम करते हैं टाइम के साथ, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 के क्वार्टर 2 के डाटा को 2019 के क्वार्टर 2 के डाटा के साथ. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंटेलिजेंस फंक्शन that we discuss in our upcoming classes. So that is your second category of your date and time functions. So this category will be very helpful for you or your future. So for date and time category, we take one example. In this sales data, if you explore, so we have two date column, right? If I show you, we have two date column, order date and ship date. Now, first of all, I want to extract year from my order date or my ship date. तो ऑलरेडी मंथ का मैंने आपको दिखाया था. अब आप में से कोई
एबल नहीं है उसका रिप्लाई मुझे करने के लिए, सो वी विल रिवाइज इट वंस अगेन. सो दिस टाइम वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ईयर. so now tell me what I create or measure. I want to extract this year from every row. So what I create, what I do? Yes, anyone? I will create one more column because we are talking about row. तो मैं इस कॉलम को नाम भी क्या देती हूँ? ईयर. फंक्शन का नेम भी, जब हमने मंथ एक्सट्रैक्ट किया था तो उस टाइम पर हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था? मंथ फंक्शन, बिकॉज वी आर एक्सट्रैक्टिंग मंथ नंबर. ईयर. तो अब ईयर में आपसे सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट पूछते हैं, क्या है वो? डेट कॉलम. कि आपको ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू हैव मस्ट column also, right? So for that, what is our reference? I select this order date column. Oh, sorry. Just a minute. Just type order date. Bracket close, hit on enter. आपका क्या हो गया? हर डेट में से हर डेट का क्या हो गया? सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया. सेम इफ आई से यू कि आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो विच फंक्शन यू विल यूज? एम आई आस्किंग टू यू? अभिनय, लोकेश, उत्कर्ष, स्तेंदर. If I want to extract month number, so which function we will use? Yes, Lokesh. Unmute yourself and let me know. Utkarsh. Simple guys, for month we will use month function. If you want to extract month, so instead of year, you use month. Simply month. And column name भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे? Change. Month and hit on enter. अब आपके पास क्या है? मंथ नंबर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है. कहां से? ऑर्डर डेट कॉलम से. एंड इफ यू वांट मंथ नेम इंस्टेड ऑफ दिस मंथ नंबर, so we have one DAX function that is month name. तो मंथ नेम की हेल्प से आप क्या कर सकेंगे? मंथ का नेम यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, राइट? Please make this training more interacting. If whenever I ask you something, at least say yes or no. Am I audible to everyone? Mandira ma'am, am I? Yes, ma'am, you are audible. So guys, at least response yes or no. Okay, so everything is clear till here. Now you are able to know how you extract year, how you extract month, a day extract करना, तो which function you will use? You will use day function. They all functions are there in your DAX function. Okay.
Okay. Now I want to show you one function to get first date of month. Similar thing we already covered in Excel with the help of EO month formula. Same function we will use in our DAX function. मैंने क्लास की फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि विच एवर फंक्शन वी ऑलरेडी यूज इन एक्सेल सेम फंक्शंस वी आर परफॉर्मिंग इन अवर डैक्स. वहां पर हम उनको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज, और यहाँ पर पावर बीआई के अंदर हम उनको क्या बोलते हैं कि दे आर डैक्स फंक्शन, बट सिंटैक्स वाइज वो सेम है, फंक्शन नेम उनका सेम है एज लाइक यूर एक्सेल फंक्शंस. सो वेन एवर इफ यू वॉन्ट, आपको दिसंबर 25 दिसंबर ना चाह के आपको चाहिए कि 1 दिसंबर, आपको सारा जो ऑर्डर डेट है आपको चाहिए कि मुझे फर्स्ट मंथ पे ही डिलीवर हो. तो वेन एवर यू वॉन्ट फर्स्ट month, so which function we are used EO month formula for that. So we will create one more column for that. कॉलम का नाम हम रखेंगे फर्स्ट डेट ऑफ मंथ. फर्स्ट डेट ऑफ मंथ is equal to which function we are using EO month. अब स्टार्ट डेट आपका वो आपसे पूछ रहा है कि किस कॉलम से, तो एज एन स्टार्ट डेट हम क्या डालेंगे, आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट माई आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई into first date of my month, so that's why I will select my order date column. Second, month. अब अगर आपको सेम, अब आपके ऑर्डर डेट कॉलम में अगर आपका दिसंबर मंथ है, आपको सेम दिसंबर कॉलम. अब ईओ मंथ मेनली किस लिए है, ईओ मंथ का यूज क्या है, ईओ मंथ आपको फर्स्ट डेट कभी नहीं देता. दैट इज वन टिप ट्रिक आई विल शो यू. EO month basically करता क्या है, I will show you once. 0 because we want to extract last date of month from same month. जो भी मेरा फर्स्ट रो में, फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट रो में दिसंबर मंथ है, तो का अब EO मंथ आपका क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है लास्ट डेट ऑफ योर एग्जिस्टिंग मंथ. तो मेरा एग्जिस्टिंग मंथ क्या है, दिसंबर, and I want to check the last date of my month. तो दिसंबर मेरा मंथ है एंड EO मंथ मुझे क्या देगा, उसका लास्ट डेट देगा. तो दैट्स व्हाई आई पुट 0, क्योंकि मुझे सेम मंथ से चाहिए. अब 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो स्टिल 0 ही रहेगा. तो दैट्स व्हाई आई पुट 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर. अब आपको क्या शो करा रहा है, लास्ट डेट ऑफ योर मंथ. क्या लास्ट डेट आपको शो हो रहा है, आपका दिसंबर था बट आपके पास डेट क्या था उसका, 25 दिसंबर यू हैव इन योर डाटा. बट अभी अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो आपका जो ये है फर्स्ट डेट, सॉरी मैंने कॉलम का नेम चेंज नहीं किया, आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, लास्ट डेट ऑफ योर मंथ. बट नाउ योर रिक्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट. इंस्टेड ऑफ योर last date of month you want first date of your month. So how we will do it, we will use some tips and tricks for that. First of all हमें चाहिए दिसंबर मंथ का. अब हमारे पास क्या है, दिसंबर फर्स्ट एंट्री, मुझे चाहिए दिसंबर का फर्स्ट एंट्री, बट मुझे लास्ट डेट दे रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूं, आई पुट -1. अब -1 करने पर ये मुझे क्या देगा, नवंबर मंथ का, मतलब कि जो मेरा ऑर्डर डेट में कॉलम एंट्री है, मेरे ऑर्डर डेट में फर्स्ट एंट्री है दिसंबर मंथ का. अब दिसंबर में से वो क्या कर रहा है, एक मंथ माइनस कर रहा है. दिसंबर में से एक मंथ माइनस होकर वो क्या होगा, नवंबर मंथ का डाटा. अब EO मंथ फॉर्मूला मुझे क्या देगा, नवंबर की लास्ट डेट देगा. तो मैं अब लास्ट में इसके क्या करूं, +1 कर दूं. तो इस फॉर्मूला की अगर आप ब्रैकेट तक फॉर्मूला को चेक करें तो ये मुझे दे रहा है नवंबर की लास्ट डेट 30 नवंबर. अब मैंने 30 नवंबर में +1 किया,
तो वो मुझे क्या देगा, 1 दिसंबर। यस, क्लियर टू एवरीवन? नाउ हिट ऑन एंटर। क्या दे रहा है अब आपको, फर्स्ट डेट ऑफ योर month for your first entry, first date of your 11th month, first date of your April month, first date of your September month. Yes guys, clear to everyone? So that's how we will extract first date, last date. EO month is basically is for your last date of your month. If you, whenever you want last date, use EO month. And this is, it is only a one trip, sorry, not trip, a one tip and trick for you. If your requirement is for first date of month, if you are looking for first date of month, so use this tip. So after EO month formula, we have one more DAX function, that is date difference, which is also really good DAX function in your date and time function. So what is the use of date difference? See, we have these two column, this order date and ship date. And now my CEO of my company want to check कि जब भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, जब भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उसके कितने दिन बाद मेरा वो प्रोडक्ट, मेरा वो पर्टिकुलर ऑर्डर शिपमेंट के लिए शिप हुआ। मेरे सीईओ को ये चेक करना है कि व्हेन आवर एम्प्लॉय शिप दिस प्रोडक्ट, ऑर्डर की प्लेसमेंट के कितने दिन बाद वो प्रोडक्ट शिप होता है टू कस्टमर, मेरे सीईओ को चेक करना है। सो हाउ वी विल चेक, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। यस, तो जब डेट माइनस हम करते हैं तो वहां पर हम माइनस फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन यूज नहीं करते, वी विल यूज date difference function for that. So for that analysis, I will make one more column. I want in sales data. So one more new column. तो मैं अपने कॉलम का नाम क्या करूंगी, शिपमेंट लीड टाइम, कि शिपमेंट के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, शिपमेंट लीड टाइम is equal to which function we are using, we are using date difference. So select order date because order is your order date. Yes, ऑर्डर हम किसी भी चीज को पहले करते हैं, शिपमेंट उसका बाद में होता है। ऑर्डर डेट इज अवर ऑर्डर डेट एंड व्हाट इज अवर न्यू डेट, आवर न्यू डेट इज अ डेट, शिप डेट, कोमा। अब जैसे ही मैंने कोमा पुट किया तो मेरे पास मेरा थर्ड आर्गुमेंट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, दैट इज इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल? अब वो आपसे पूछ रहा है कि दिस वन पॉपअप इज कम ऑन माय स्क्रीन, और इस पॉपअप के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, डे, आवर, कि आपको जो ये डिफरेंस चेक करना है इन दोनों डेट के बीच में, वो डे में होगा, आवर में होगा, यू वांट इन मिनट, यू वांट इन मंथ एंड यू वांट इन क्वार्टर। तो हमको सबको पता है कि जब भी हमारा ऑर्डर डेट और शिपमेंट का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली जनरली किस में होता है, डेज में, राइट? अगर मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो वो विद इन 15 डेज, मैक्स टू मैक्स विद इन 15 डेज वो क्या हो जाता है, उसका शिपमेंट हमारे तक हो जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई विल सिलेक्ट डे, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 डेज में वो कंपनी क्या कर रही है, अपना ऑर्डर शिपमेंट कर रही है 6-4, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वो कितने दिन ले रही है, हाईएस्ट उसने लिए हैं 6 डेज, 7 डेज आपको यहाँ पर चेक दिख रहा है। तो मतलब कि विद इन ए वीक वो क्या कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। हाईएस्ट आपको 7 ही दिख रहा है। तो वो कंपनी अपने एड में क्या मेंशन कर सकती है कि वी विल ट्रांसफर योर प्रोडक्ट विद इन ए वीक,
मोस्टली बोलते हैं ना विद इन 15 days वी विल ट्रांसफर, ब्लिंकिट करते हैं जैसे कि 10 मिनट के अंदर डिलीवर होता है। तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल्स कर सकती है, वो एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि विद इन ए वीक वी विल ट्रांसफर यू। So that's how we will get insights. We will make more and more insights from our raw data. सीरत, आपको नहीं लगता कि आपने क्लास जल्दी ज्वाइन किया है? आफ्टर 10 minutes यू हैव नीड टू ज्वाइन ना? इतना जल्दी ज्वाइन क्यों किया आपने? यस सीरत, एम आई टॉकिंग टू यू? व्हाई यू आर सो लेट? Always join on time, guys. I forgot about today's class, so I joined quickly. इसमें आपको हमेशा याद रहना चाहिए ना कि आपका वेडनेसडे सैटरडे क्लास होता ही है। वेडनेसडे एट 4 PM, सैटरडे एट 3 PM। इसमें भूलने वाला तो कोई इशू ही नहीं है कि हम भूल गए, क्लास आपका है। ओके, जॉइन ऑन टाइम। तो डेट डिफरेंस अभी सबको क्लियर है? ओके, सो अगर डेट फंक्शंस आपको क्लियर है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन, दैट इज कैलकुलेट। डू यू नो functions of Excel? Sum if, count if. Anyone have any idea about these functions? What is sum if function? What is the use of count if function? Satender, unmute yourself and let me know what is the use of sum if function and count if function. When we use this type of function. ओके, तो सतेंद्र ना, आप में से मुझे बताइए कि हमने कल ही जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने लॉजिकल फंक्शंस कवर किए थे। डेक्स फंक्शंस के अंदर लॉजिकल फंक्शंस में हमने कौन से फंक्शन किए थे? टोटल 4 फंक्शन हमने कवर किए थे, इफ, एंड, और, एंड वन लेटेस्ट फंक्शन इज अवर स्विच फंक्शन। तो इफ फंक्शन जब मैंने पुट किया था तो वहां पर मेरे पास क्या थी? कंडीशन, कि अगर मेरी सेल 1000 से ऊपर है तो वो मेरी किस कैटेगरी की सेल है? हाई सेल्स। अगर मेरी 500 से ग्रेटर देन तो वो किस कैटेगरी में है? मॉडरेट। और 500 से बिलो अगर मेरा डे का सेल है तो वो किस कैटेगरी में है? लो कैटेगरी में। ये हमने डिस्कस किया था। तो इफ का तो आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। सम का सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट सम फंक्शन, कि whenever Yes, we ma'am. want to sales revenue we will use sum at that time, right? But when we have need to sum as well as we have some condition, at that time we will use sum if function, because we have condition for sum, we have some criteria. Yes, Yes, ma'am. tax we do not have this type of function, sum if and count if. For that we have one function, that is calculate one. हमारे पास डेक्स फंक्शन के अंदर वो फंक्शनैलिटी हमें नहीं है कि हम सम इफ या काउंट इफ फंक्शन का हेल्प लेके अपना डाटा सम कर सके। सो दैट्स व्हाई वी हैव वन फंक्शन, दैट इज कैलकुलेट। सो व्हाट कैलकुलेट बेसिकली डू? फर्स्ट थिंग, you need to define what you want to perform, sum, count, etc. ये सारे जितने भी आपके, if you are looking for maximum, if you want to looking for count if, sum if, तो सबसे पहले calculate function के अंदर आपको वो define करना होगा कि what type of operation you want to perform in calculate function. That is first condition. After your operation आपको चाहिए sum if, तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? सम। आफ्टर ऑपरेशन यू हैव नीड टू डिफाइन योर फिल्टर, कि आपने ऑपरेशन तो सिलेक्ट कर लिया सम, अब आपका कंडीशन क्या है? व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस डाटा?
सो ये बेसिकली किसका काम है? आपके कैलकुलेट फंक्शन का. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू वन थिंग. फॉर दैट आई विल क्रिएट वन न्यू measure because I want to check sales quantity for my any subcategory. We have this data. This is our sales data. Here we have this quantity column. And if you explore your product table, so in your product table, what we have? Just a minute. In your product table, what we have? We have multiple subcategories. We have this subcategory. So अगर अब मैं आपको डाटा दिखाऊं आपके प्रोडक्ट टेबल का, तो सिलेक्ट योर प्रोडक्ट टेबल. अब यहाँ पर आपको सब कैटेगरी है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज. we have appliances, we have binders, we have chairs, machines. So if you want to check sum of sales quantity for any particular subcategory, so अगर हमारे पास हम एक्सेल में ये डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वी विल यूज सम इफ फंक्शन एट दैट टाइम. बट डैक्स फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी हमारे पास नहीं है. we do not have any sum if function, count if function. So rather than sum if and count if function, we will use calculate. I am looking for table sum of sales quantity. So here we have need to define where is my column. I think this is my column. No. Okay, I will create one more. I will create measure at the time, right? Because we are looking for summarized data, how much quantity we sold for table. So that is summarized. We are not looking for row. We are looking for value. So whenever we talk about for value, so at that time what we use, what we create, we will create measure. Sum of table. That is my column name. So which function we are using? We are calculate because we have condition now. Calculate. अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेशन कि what you want sum, you want count, you want maximum, you want average. According to you, choose your function. I want sum of sales, so my function name will be sum. Now column name, किसका sum चाहिए मुझे? Quantity. I am looking for quantity. Data quantity, right? Select it. First of all, close your bracket. Now bracket. अब वो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट तो मैं कर दूंगा, बट कैलकुलेट को पता है कि कैलकुलेट फंक्शन का जब भी यूज, मेरे पास कोई कंडीशन होती है, कोई स्पेसिफिक फिल्टर हमें अप्लाई करना होता है, कोई कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमारे पास होता है. तो फिल्टर हमारे पास है कि वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट आईडी का मुझे सब कैटेगरी में से टेबल चाहिए. किस में से चाहिए? सब कैटेगरी में. तो फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर सब कैटेगरी. तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कैटेगरी. इस नेम को मैं रिमूव करती हूँ. तो ये कॉलम मेरा हाईलाइट हो गया. अब सब कैटेगरी में मुझे क्या चाहिए? मुझे वो डाटा चाहिए जहां पर सब कैटेगरी इज इक्वल टू है किसके? टेबल. आपको डाटा में चेक कर लेना है, आपकी जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप चेक कर रहे हैं कि अगर वहां पर टेबल्स ना हो के टेबल होगा तो वो आपको एरर देगा. और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स का यूज किया है बिकॉज whenever we put any text value in any function, so always use double quotes or single quotes. Bracket close, hit on enter. Now if we are come in our report view, so we have this measure. First of all, I put one card. Now I put this measure in this card.
40K। कितना है आपके पास? 40K का सेल है आपका टेबल का। यस, सम ऑफ शिपमेंट नहीं, ये आपका आई थिंक गलत है। जस्ट ए मिनट, हमने नाम क्या मेंशन किया था? सम ऑफ टेबल, राइट? तो वेयर इज अवर मेजर? जस्ट ए मिनट, सम ऑफ टेबल, यस, 1241 क्वांटिटी आपका सोल्ड हुआ है ओवरऑल किसका? टेबल का। अब आप यहाँ से पर्टिकुलर हर किसी प्रोडक्ट के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आपके बॉस को चेक करना है कि हमने टेबल का कितना क्वांटिटी सोल्ड किया, तो विद द हेल्प ऑफ टेबल टू नो, तो ये है आपके कैलकुलेट फंक्शन का यूज। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप आज की क्लास में हमने कौन कौन से डेक्स फंक्शन कवर किए? हमने टेक्स्ट फंक्शंस कवर किए, सिंपल डेट एंड टाइम फंक्शंस हमने कवर किया, एंड दिस कैलकुलेट डेक्स फंक्शन इज वेरी पावरफुल डेक्स फंक्शन। जब भी आपके डाटा में कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी फिल्टर आपका अप्लाई है, तो विच फंक्शन यू आर यूजिंग? यू आर यूज कैलकुलेट फंक्शन एट दैट टाइम. We will discuss in more detail in our upcoming class. So till now, if anyone have any doubt, so unmute yourself, let me know. If anyone have any small silly doubt, so no need to feel shy, unmute yourself and let me know. Otherwise, I will stop my screen now. Yes, everything is clear till here. It seems good if you do not have any doubt, but ऐसा मेनली दो ही कंडीशन में होता है, या तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, दूसरा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि एक तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहा है, दूसरा आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर है, आपको सब कुछ आ रहा है या आपको कुछ नहीं आ रहा है। यस सत्यजीत, that is the time for joining the class. I'm not from this class. I'm the trainer of the upcoming class. So yeah, I joined early, so that's what the thing. Okay. Yes, Ma'am, yes, excuse me. yes, Mandira ma'am. Ma'am, we have another session on the same Zoom meeting link. We have to wind up Okay. this session. Yeah. Yes, sure, Mandira ma'am. Okay. So, yes, Sirath,